हमने फर्स्ट 3 सम्स का लेजर किया हुआ है. So let's continue with that. Take out sum number 9 in case of Roy. First, 1, 3, 10, ninth sum. Start the ledger from ninth sum onwards. In the journal of Amar, the books of Amar, make Vinod's account. I want you all to try it on your own now. Do for ninth sum. 9 के बाद 2, 4, 5, 13, 14 and 15. Come on, start. All of you, ledger accounts. 9, 2, 4, 5, 13, 14, 15. 9, 2, 4, 5, 13, 14, 15. Start with the ledger accounts. Nine, 2, 4, 5, 13, 14, 15. खुद से ट्राई करना है. लेजर इज सेम पोस्टिंग, नॉर्मल पोस्टिंग लाइक वी डू. खाली कंबाइंड एंट्री है तो स्प्लिट करके करना है. और फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है. जैसे वहां पे 2 सेल्स था, 2 सेल्स के जगह पे 2 बैलेंस बीडी आता था. यहाँ पे फर्स्ट एंट्री शुड बी बाय परचेज, परचेज टू क्रेडिटर. सो बाय परचेज आना चाहिए पोस्टिंग में. तो परचेज नहीं है, so it should be buy balance brought down. Okay, instead of purchase it will be buy balance brought down. Rest everything is normal. You can match your answers with your drawer ka ledger. It will be mirror image. Amount should be exactly on the opposite side. Same amount पे tally होगा दोनों ledger accounts, drawer का भी और drawee का भी. 9, 2, 4, 5, 13, 14, 15. करते जाओ posting. Do it on your own. We have to do this today. अभी yes. हाँ. 9, 2, 4, 5, 13, 14, 15. स्टार्ट करो. सबके लेजर्स बनाना है. All the ledgers should tally.
Elvin, Forum, Jainam, Kashish. The video Sir, on. Huh. sir 9 sum मध्ये फर्स्ट एंट्रीचे विनोड टू बिल्स पेएबल टू बँक अकाउंट એમાં જે બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન છે એ કઈ સાઈડ આવશે ડેબિટ કે ક્રેડિટ? See, purchase entry કઈ side આવે? On the credit side, right? Buy purchase. So that means he is your credit. હવે purchase entry નથી ને? Still you are accepting a bill. Why you are accepting a bill? Because he is your creditor already. Got it? And creditors have which balance? So we will show buy balance. Buy BD. balance, BD. Credit balance. So buy On the balance, first BD. date of the month, we will show buy balance and then bills payable. Yes, first date of the month, 1st October 2010, buy balance BD because he is your creditor. उधर क्या होता था? टू बैलेंस बीडी because he was your debtor. Draw was your debtor. तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी इंस्टेड ऑफ बाय परचेज बाय बैलेंस बीडी कितना 30,000 बाय बैलेंस बीडी 30,000 गॉट इट हाँ सर. और डेट क्या होगा बैलेंस का फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ 1 अगस्त સર તમે ફોર્થ સમ કરશો? फोर्थ सम सॉल्व करूं હા એનું લેજર કરશો પ્લીઝ, મારું ટાલી જ નથી થતું. સિમ્પલ છે એક મિનિટ fourth ma in the books of Rohan we are making Rohit's account so 4/3/2019 એમાં બેલેન્સ લખવાની જરૂરત નથી કારણ કે પરચેઝ એન્ટ્રી આર હેવિંગ so buy purchase would be 8,000 then 2 BP 8,000 and BP to Rohit so buy BP 8,000 तो 9 में 50 पे क्लोज हो रहा है ना. sorry 9 में 50,200 पे क्लोज हो रहा है ना. ninth sum wait 1 minute I'll discuss the totals of all the sums and it is Rohit to cash then Rohit to BP again BP to Rohit and Rohit to cash to deficiency Sir, મને voice is cracking not able to understand what are you saying 20 to 1 લેજર નથી ફાવતું. ledger નથી ફાવતું 20 to 180 કોને રાહુલ ને ના ના સર મારો હતો, મેં એક એન્ટ્રી ગલતીથી મિસ કરી દીધી હતી જર્નલમાં જ, તો એટલે. okay નહીં ledger કોને નથી ફાવતું someone said that મને રાહુલ. Rahul how to do the posting you are not able to understand
યસ. ઓકે ઓકે, જો પહેલી એન્ટ્રી છે ને એ શું છે, પરચેસ ટુ રોહિત છે, બરાબર. હાઉ ટુ પોસ્ટ ઇટ? પરચેસ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ ટુ રોહિત, બીકોઝ પરચેસ ઇઝ ગેટિંગ ડેબિટેડ. પરચેસના ડેબિટ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ ટુ રોહિત, બટ વી ડોન્ટ હેવ પરચેસ અકાઉન્ટ ઓવર હિયર, વી હેવ ઓનલી રોહિત્સ અકાઉન્ટ. પરચેસના ડેબિટમાં લેફ્ટ સાઈડમાં યુ હેવ ટુ રાઇટ ટુ રોહિત, એન્ડ રોહિતના ક્રેડિટ સાઈડ પર રાઈટ સાઈડ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ બાય પરચેસ. તો આ લખી લીધું બાય પરચેસ. ઓકે, હવે સેકન્ડ એન્ટ્રી શું છે, રોહિત ટુ બીપી. તો રોહિત અકાઉન્ટના ડેબિટમાં યુ હેવ ટુ રાઇટ ટુ બીપી. સર બીજા ડિવાઇસ થી આવો. એમ ક્રેક થાય છે. કમ ફ્રોમ અનધર ડિવાઇસ, નો પ્રોબ્લેમ. હા બોલ. સર હું બીજા ડિવાઇસ થી આવું. હા હા હા, બહુ બીજા crack થયું. ડિવાઇસ. બીજા ડિવાઇસ. યસ યસ, બોલો. કયા સમ્સ કરવાના હતા? 9 2 4 5 13 14 15. 9 2 4 5 13 14 15. સર કોલમ્સ ના ઉપર શું લખવાનું? યસ, કોલમ ના ઉપર શું લખવાનું? date particular JF amount, date particular JF amount, same format. लेजर का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट. હા સર. यस, जो फर्स्ट एंट्री है ना परचेज टू रोहित છે. हाउ डू यू पोस्ट इट इन द लेजर अकाउंट? परचेज अकाउंट માં ડેબિટ સાઇડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ યુ હેવ ટુ રાઇટ ટુ રોહિત, એન્ડ રોહિત અકાઉન્ટ ના ક્રેડિટ સાઇડ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ બાય પરચેસ. ઓકે, એવરી એન્ટ્રી ઇઝ લાઈક ધીસ ઓનલી. તો રોહિતમાં મેં લખી લીધું બાય પરચેસ, પરચેસ અકાઉન્ટ તો બનાવ્યું નથી મેં, તો છોડી દીધું. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી છે રોહિત ટુ બિલ્સ પેએબલ. તો રોહિત અકાઉન્ટ ના ડેબિટ સાઇડ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ ટુ બિલ્સ પેએબલ, એન્ડ બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ ના ક્રેડિટ સાઇડ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ બાય રોહિત, રાઈટ હેન્ડ સાઇડ પર યુ હેવ ટુ રાઇટ બાય રોહિત. સો આપણે શું કયું અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે? ખાલી રોહિત અકાઉન્ટ. તો રોહિતના ડેબિટમાં ટુ બિલ્સ પેએબલ. ઓકે, ઈ જ આવશે. પછી બીપી ટુ રોહિત. તો હાઉ ટુ ડુ ઇટ? બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ હે ને, બિલ્સ પેએબલ ના ડેબિટ સાઇડમાં ટુ રોહિત, બટ બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ તો છે નહીં. બિલ્સ પેએબલમાં ટુ રોહિત અને રોહિતમાં બાય બિલ્સ પેએબલ. રોહિતમાં બાય બિલ્સ પેએબલ. That's what I have written, 8,000. Okay, then we have interest to Rohit. So interest માં to Rohit on the debit side, interest account છે નહીં, અને રોહિતમાં by interest, રોહિતમાં by interest. Okay, that's what I have written, 180. Then Rohit to cash. So Rohit account માં debit side પર to cash, રોહિતમાં debit side પર to cash, અને cashમાં credit side પર by Rohit, but cash account we are not having. ખાલી રોહિતમાં debit side પર to cash, અહીંયા રોહિતમાં debit side પર to cash. It's purely mechanical, very simple. Then again we have BP, Rohit to BP. So રોહિતમાં debit side પર to BP, BP માં credit side પર by Rohit. We are making only Rohit account. Na? રોહિતમાં debit side પર two bills payable are 6,000. Then again BP to Rohit. So BP માં to Rohit અને રોહિતમાં by BP. Two on the debit side. BP માં to Rohit and by on the credit side. BP. એટલે અગર રોહિત ક્રેડિટ હોય તો એના ઉપર વાળું જે પણ હશે એ ક્રેડિટ સાઈડ પર આવશે. હા, બરાબર છે. અને ડેબિટ થાય છે તો નીચે વાળો જે છે એ ડેબિટ સાઈડ પર આવશે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર આવશે. થેન્ક યુ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર ટુ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર બાય. પ્રિફિક્સમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર ટુ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર બાય. અને કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી હોય તો સ્પ્લિટ કરી નાખવાની. આગળ હું બતાવું છું કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી.
હવે આવશે આગળ. ઓકે. 9 2 4 5 13 14 15 बना दे जाओ. अच्छा मेरे को टोटल्स बोलो. 9 सम का टोटल क्या आ रहा है आपको? टैलिंग अमाउंट 5,000, 9th सम 9th sum 50,200. 60,400. 60,400. 60,400 आना चाहिए. देखो 60,400 चेक. 60,400 कितना होगा? बाय बैलेंस बीडी इन 9th सम. ओपनिंग बैलेंस कितना लिया है? 30,000. 30,000. फिर आएगा 2 बीपी एंड 2 बैंक 20 एंड 10. फिर आएगा बाय बीपी ऑन द क्रेडिट साइड 20,000. फिर 2 कैश 10,000. बाय इंटरेस्ट 200. 2 बीपी 10,200. Buy BP 10,200 and 2 cash and 2 deficiency 5,100, 5,100. 60,004. Anyone has done sum number 2? Tallying amount 1,07,50. 1,07,50. अभी sum number 2 में अगर आप Only 1 lakh. Sir, only 1 lakh. yeah, if you have yes because you have combined entry number 2 and 3. Remember drawer के वक्त भी बताया था. If you have combined entry number 2 and 3, then your total will be 1 lakh. Okay. If you have swapped, if you have written it separately, then it will be 1,07,50. Anyone has done sum number 4? 22,000. 22,067, I think. Yeah, I have. But if you have combined step number 2 and 3, it will be 22,000. बराबर. Fifth one हो गया किसी का? 15,100. हाँ 15,100. 15,100. Okay. 13, 14, 15 बड़ा है तो शायद नहीं हुआ होगा अभी तक. करो. Sir, 19,000. 13 भी हो गया. 13 का कितना है? 19,000. 19,000. So 14. 14th का 13,160. 13,160 and 15th करो. Come on, do it. Check the totals. ये टोटल्स है ना, मेरा वाला मेथड है, मैंने स्वैप किया हुआ है, उसके टोटल्स है. अगर आपने कंबाइन किया स्टेप 2 और स्टेप 3 तो इंटरेस्ट अमाउंट खाली माइनस कर देना टोटल में से. 22,067 के जगह 22,000, 1,07,50 के जगह 1 लाख. ओके, दैट वे. फर्स्ट चीज का ध्यान रखना, परचेज एंट्री है तो बाय परचेज, परचेज एंट्री नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी योर क्रेडिटर. फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो फोर्थ सम बताओगे एक बार? ये फोर्थ सम સર 9th સબમાં ક્રેડિટ સાઇડ પર ખાલી 3 જ એન્ટ્રી છે ને લેજરમાં? 9th सम I'll tell you. 9th सम में पहला तो बाय बैलेंस बीडी लिखा है 30,000. हाँ Sir, screen sharing एक मिनट यार.
में पहला तो बाय बैलेंस बीडी आएगा 30,000, हाँ उसके बाद टू बिल्स पेएबल आएगा, सॉरी बाय टू बिल्स पेएबल एंड टू बैंक आएगा 20 एंड 10 डेबिट साइड पे। हाँ फिर क्रेडिट साइड पे बाय बिल्स पेएबल आएगा 20, हाँ फिर बरोबर। डेबिट साइड पे आएगा टू कैश 10, हम्म, क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट 200, वापस डेबिट में टू बिल्स पेएबल 10,200, वापस क्रेडिट में बाय बिल्स पेएबल 10,200 एंड डेबिट में टू कैश एंड टू डेफिशिएंसी 5,100 5,100। So the fourth one. क्लियर विद दैट? हाँ सर सब जान। तो फिर टोटल नहीं आ रहा है? मैं ओली इंटरेस्ट ની એન્ટ્રી નહોતી ગઈ। 200. Yes, Vidushi. Fourth sum. Fourth sum. एक मिनट. Here are fourth sum. Fourth is easy. What's the problem fourth में? सर फिफ्थ सम लेकर देखो ना। 1 minute. देखा विदुषी फोर्थ? हाँ done. फिफ्थ वाला, एक मिनट, फिफ्थ वाला I'll just make it quickly. Fifth वाला is also simple. Sir, can I just go to the washroom? Yeah, sure. This is buy purchase 10,000. बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि परचेज एंट्री है। इधर आएगा 2BP1, 2BP2, 5,000, 5,000, फिर डिसऑनर हुआ तो बाय BP2 5,000, then interest to Meena, so buy interest 100, and 2BP3 5,100. That's it. 15,100 it tallies. This is your ledger. 15,100 for fourth sum, it tallies. Check. So Fifth can you sum. show once combined entry के लिए ledger how the interest goes away? कंबाइंड एंट्री का लेजर यही सम है। हाँ यही सब में। यही सम में कंबाइन नहीं करना है ना, ये सम में पार्ट पेमेंट है ही नहीं तो कंबाइन क्यों किया? So है ना रोहित अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट तो कैश अकाउंट। फिफ्थ सम विच सम यू से? हाँ फिफ्थ सम सर। फिफ्थ सम में कहाँ है रोहित? फिफ्थ सम तो मीना और नीनाक वाला है ना। तो सर नाइन्थ सम में नाइन्थ सम। नाइन्थ सम, एक मिनट, नाइन्थ सम में तुमने कंबाइन किया है एंट्री को, हाँ तो तुम्हारा कंबाइंड एंट्री होना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ ओके, तो ये होगा तुम्हारा एंट्री, इंटरेस्ट विनोद टू कैश। इंटरेस्ट आएगा 200, विनोद आएगा 10,000 और कैश आएगा 10,200, बराबर है। हम्म अब इसको स्प्लिट करना है, पहले पोस्टिंग से पहले इसको अलग कर देने का। अलग करोगे तो क्या मिलेगा देखना ध्यान से, इंटरेस्ट टू कैश 200 रुपीज, ओके, एंड विनोद टू कैश 10,000 रुपीज, ओके that way it is. So interest to cash 200 and Vinod to cash 10,000. तो अभी इंटरेस्ट टू कैश तो इंटरेस्ट और कैश में जाएगा। अपना एंट्री क्या है? विनोद टू कैश 10,000, तो विनोद में टू कैश 10,000 बस। ओके सर थैंक यू। कैश में बाय विनोद, विनोद में टू कैश 10,000। Veer, you finished all?
So 15th one is left. Okay. Then just send all the solutions. Ledger સર वाला. ફિફ્થ વાળું દેખાડો ને લેજર. Fifth वाड़ू. एक minute. Are you fifth? फिफ्थ वाला 15,100 पे क्लोज हो रहा है ना? 15,100. Yes. एथ वन नो. Sorry. एथ वन नो. No. After fifth it is 9 2 4 5 13 14 15. सीधा 13 14 15. जम रहा है बाकी posting. Still any doubts? Anyone? Tell me. You don't understand something? Mechanical it is 2 by 2 by, and if it's a combined entry, split up. अलग अलग करके फिर post करो. Entries BP noting charges to RAM. तो BP to RAM noting charges to RAM. अलग अलग. RAM में by BP by noting charges. Sir, can you show the journal of 14th from 1 second? 14th. 1 minute. The journal of 14 some का journal. Sorry. 14. Yes. वीर हो जाएगा तो फिर just share now all the ledger images. Yeah. सर 14 का जर्नल कहाँ? 14 का जर्नल सामने तो है. ledger. 14 का लेजर. एक मिनट. I'll make it 14 का लेजर. What's the tally around the 15th? 15th का टैली मिला किसी को? 7,060. Sir, 13 tallies on 1967. 1 minute.
13th one tallies on 19,067, I think. Yeah. Is it 1967 ki 19,000? 19,067. 19,067. 067. If you have combined the entry, then it is, I think, 19,000, right? Combined किया है तो 19,000, otherwise 19,067. फोर्थ टॅली नव्हता तू कયું નતું તું? फोर्थ with account out. Fourth. एक minute. The fourth is hard. What fourth is hard? So simple it is. What are you not getting in fourth? This is fourth. 1 minute, I'll make for 14th. This is fourth. What are you not getting in fourth? Tell me. पहला purchase है. Purchase to Rohit, so buy purchase. Rohit to BP, तो रोहित में 2 BP. Dishonor हुआ BP to Rohit, तो buy BP. Part payment, Rohit to cash. पहले interest है, फिर part payment है. Buy interest of it to cash. फिर 2 BP, buy BP. Rohit to BP acceptance, वापस buy BP dishonor. फिर to cash to deficiency. Last entry combined entry है ना, Rohit to cash and Rohit to deficiency. Rohit to cash is 2,400 and Rohit to deficiency is 3,600. क्या नहीं है? सर सम्स और उनके टोटल देखो ना बता रहा हूँ, एक मिनट. फोर्थ सम देख लो पहले अच्छे से. Sir, 15th one tallies on 15th one tallies on 7,600. 7060, I think. Yeah, 7060. મળી મળી ગયું? ટુ ઇન્ટરેસ્ટ આ સાઈડ લેખું તું કમ્બાઇન એન્ટ્રી કરી દે. હા, તો ઇન્ટરેસ્ટ ની કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કરી હશે ને તો તારી એન્ટ્રી આ હશે. ઇન્ટરેસ્ટ રોહિત ટુ કેશ. બરાબર છે? ઇન્ટરેસ્ટ માંથી લખ્યું છે 180, રોહિત માંથી લખ્યું છે 2000 અને આ લખ્યું છે 2180. બરાબર? હવે આને તોડવાનું, સ્પ્લિટ કરવાનું પહેલા. સ્પ્લિટ કરીશ તો શું આવશે? ઇન્ટરેસ્ટ ટુ કેશ 180 અને રોહિત ટુ કેશ 2000. બરાબર? તો ઇન્ટરેસ્ટ ટુ કેશ 180 તો ઇન્ટરેસ્ટ અને કેશ એકાઉન્ટમાં જાય. આનું અહીંયા કઈ કામ જ નથી. તો રોહિત ટુ કેશ કેટલું છે? 2000. તો અહીંયા ખાલી રોહિતમાં આવશે ટુ કેશ 2000. બસ. ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, સમજાણું? ઇન્ટરેસ્ટ ટુ કેશ અને રોહિત ટુ કેશ. ઇન્ટરેસ્ટ ટુ કેશ will go in interest account and cash account. રોહિત ટુ કેશ 2000. તો રોહિત તમે में 2180 લખ્યું છે. ના, આ તો મેં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટ્રી કરી છે ને. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટ્રી की પોસ્ટિંગ ઓકે ઓકે મેં હંમેશા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ કરી છે. મેં ક્યારે કમ્બાઈન કરી જ નથી સમમાં. મેં તમને ઓપ્શન આપ્યું હતું કે કમ્બાઈન કરી શકો. મેં હંમેશા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થી જ સોલ્વ કર્યું છે. બરાબર? તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં કરીશ ને તો તને ટુ કેશ અને બાય ઇન્ટરેસ્ટ બંને દેખાશે. પણ અગર કમ્બાઈન કરીશ ને તો આ દેખાશે જ નહીં. આ બાય ઇન્ટરેસ્ટ દેખાશે નહીં ને ટુ કેશમાં કેટલું આવશે? 2000 આવશે. સમજાણું? આ અલગ થઈ જશે અને તારો ટોટલ ચેન્જ થઈ જશે. 22,180 ના ઠેકાણે 22,000 આવશે. ક્લિયર? ટોટલ વિલ બી 22,000. સમજાણું ને? પોસ્ટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ કેશ ને રોહિત ટુ કેશ. હા સર રોહિતમાં ટુ કેશ 2000. ઓકે? इंडिविजुअल करे तो 2 एंट्री, कंबाइन करे तो सिंगल. 15 सम का टोटल इज 7060. बाकी सम्स का टोटल निशांत को चाहिए था. ये देख लो निशांत, टोटल्स ऑफ ऑल द सम्स. And 14th sum, I just solve it. 14th sum. See 14th sum.
इसमें परचेज एंट्री है, परचेज टू वसंत, तो दिस इज वसंत अकाउंट ना, क्रेडिटर का अकाउंट है। पहला एंट्री आएगा बाय परचेज 9,000, फिर हमने बीपी एक्सेप्ट किया तो 2BP1, 2BP2, 2BP3 to bank. This will be 2,000, 3 bills payable है एंड 3,000 का चेक है। फिर BP2 नोटिंग चार्जेस टू वसंत, ये एंट्री को कैसे करना है समझ में आ रहा है आपको? BP2 नोटिंग चार्जेस टू वसंत स्प्लिट अप। What are the two entries over here? BP2 to Vasant and noting charges to Vasant. So BP2 to Vasant is 2,000. BP2 to Vasant is 2,000. तो Vasant में buy BP2 2,000 and noting charges to Vasant. तो Vasant में buy noting charges account 10 rupees. Okay, split करना है, अलग अलग इंडिविजुअल सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करना है और फिर पोस्ट करना है। So BP2 to Vasant is 2,000, तो वसंत में बाय BP2, नोटिंग चार्जेस टू वसंत, तो वसंत में बाय नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट टू वसंत, तो वसंत में इंटरेस्ट, that will be 70, वसंत टू BP4, तो वसंत में 2BP4 2080, BP4 टू वसंत, तो बाय BP4 2080 and Vasant to cash and Vasant to deficiency. तो वसंत में 2 कैश 208 एंड वसंत में ही 2 डेफिशिएंसी 1872। ये कितने पे हो रहा है? 7060 7060। सर ये रेंज सेम ही है 13,160 नहीं नहीं 13,160 15 सम 13,160 करा दिया आपने। 13,160 it tallies on 13,160. I think Veer has shared all the ledgers का They sent it in a PDF form. ओके पीडीएफ में ओके सी चेक कर लो सॉल्यूशंस ऑल द लेजर अकाउंट्स 9 2 4 5 13 14 15 का ग्रुप पे आ गया है सॉरी 9 2 4 5 13 14 15 Then you come to sum number 7 and solving sum number 7 का ledger again. I wait for 5 minutes. સર બાય પરચેસ વાળી કઈ લખવાની? परचेज ની ડેટ અગર ના આપેલી હોય તો ડેશ 5-1 આપેલી તો છે આમાં 15 સમ્મા 15th માં 15th માં પરચેજ ની ડેટ નથી લખવાની ભાઈ પરચેજ ની એન્ટ્રી જ નથી તો બાય બેલેન્સ બીડી ફર્સ્ટ ડેટ ઓફ ધ મંથ કીધું ને બાય બેલેન્સ બીડી 1712 બાય બેલેન્સ બીડી 4000 on 1712 પરચેજ ની એન્ટ્રી હોય then only you write by purchase if purchase ની એન્ટ્રી નથી then it is simply by balance BD by balance BD opening balance 4000 on 1712 got it
Sir, only these many we have to do. 9, 2, 4, 5, 13, 14, 15. Now it's tallying all ledgers. हो गया 15 तक हो गया all of you? Anyone still doing till 15? चलो 7th sum ले लो 7th sum. Come to sum number 7. Here are 7th sum. In the books of Saurav, make Sachin's account. 7th sum. भी confusion है तो देख लो ध्यान से. Making it 7th sum. In the books of Saurav, we are making Sachin's account. Check whether you have purchase entry. Very first entry, yes. Purchase to Sachin. Can you all see that? On 3rd of August. 3rd August 20. पहला entry होगा buy purchase. Buy purchase, that will be 10,000. Then Sachin to bills payable. तो Sachin में आएगा to bills payable. That will be 10,000. फिर BP noting charges to Sachin. You have to split it. Okay, BP to Sachin and noting charges to Sachin. So BP to Sachin. BP में to Sachin. Sachin में buy bills payable 10,000. And noting charges to Sachin. So noting charges में to Sachin. Sachin में आएगा buy noting charges account. Buy noting charges account 10 rupees. डेट में डैश. फिर आता है सचिन टू कैश. तो सचिन में 25 410 आई वो व्हाट अले टैली का जो 25,410 विच सम 7 अरे रुकना सर भाई, बराबर एक कंप्लीट तो करूं. बाय इंटरेस्ट दैट विल बी 200. then two bills payable. Sachin to bills payable. Sachin to bills payable 5,200. वापस डिसऑनर हुआ तो बाय बिल्स पेबल 5,200. बाय बिल्स पेबल एंड देन सचिन टू डेफिशिएंसी. टू कैश नहीं आएगा, खाली टू डेफिशिएंसी आएगा 5,200. बाकी सब डेट्स में डैश डैश डैश. देख लो कितने पे हो रहा है टैली. 25 to 410. 25,410. Is that right? 25,410. Check. Tally is on 25,410. Check, check, check. आ रहा है? That was your 7th sum. राहुल को आ रहा है बोस्टिंग? हाँ सर. जम रहा है अभी? टैली हो रहा है? Okay, good. Anyone else? Any doubt? Vidushi? Posting? प्लीज क्लियर. हाँ, कुछ नहीं जम रहा है तो अभी पूछ लो, फिर वापस पेंडिंग रखोगे, जमा होएगा सब डाउट्स. प्रथम दिनोजा को आ रहा है, रेविन सेठ को आ रहा है, पूजन बंसाली, देवांशी. वोटिंग चार्जेस वाली एंट्री क्लियर, कंबाइंड एंट्री क्लियर. फिर आ जाओ नेक्स्ट सम पे. ठीक है, करो ये करो.
12th सम पे आ जाओ सब लोग। इसके बाद सम नंबर 12, स्मिथ शाह को आ रहा है। स्मिथ शाह, लेजर कंफर्टेबल, ऑल टैलिंग। चलो 12th सम ले लो सब लोग। ये वाला हो गया, सचिन भैया का अकाउंट हो गया सबका। 12th सम, ऑल ऑफ यू कम टू सम नंबर 12। 12 किसके बुक में है? आई थिंक इन द बुक्स ऑफ राजा। In the books of Raja, we are making Ram's account. In the books of Raja, we are making Ram's account. Chalo. In the books of Raja, we are making Ram's account. 12th sum. This is in the books of Raja, we are making Ram's account. ठीक है? Check whether you have any purchase entry. तो yes, purchase to Ram है 21st March 2010. So buy purchase would be 8,000. Then Ram to bank to BP1 to BP2 25th March. 25th March को होगा Ram to bank. पहले Ram में to bank. That will be 3,000. फिर Ram में to BP1 2,500. And Ram में to BP2 2,500. Okay, date is same, 25th March. And BP1 to cash, BP noting charges to Ram, BP2 noting charges to Ram. इसको split करना है फिर post करना है. Okay, BP2 to Ram और noting charges to Ram. So BP2 to Ram, Ram में आएगा buy BP2 account 2,500 and noting charges to Ram. So buy noting charges account, that will be 20 rupees. Okay, buy BP2, date is 28 June. Buy BP2 and buy noting charges. All of you got this? BP2 to Ram, noting charges to Ram. Then मैंने अलग अलग किया तो मैं अलग अलग पोस्ट कर रहा हूँ. मैं आपको कंबाइन की भी बता देता हूँ इसके बाद. इंटरेस्ट टू राम, सो बाय इंटरेस्ट टू राम, सो बाय इंटरेस्ट. ये इंडिविजुअल एंट्री है, स्वैप किया हुआ है. Buy interest 30 rupees on 28th July. And Ram to cash, तो Ram में आएगा to cash, that will be 1030 28th July. अभी कंबाइन किया ना, तो मैंने यहाँ पे कंबाइन एंट्री लिखी हुई है. Ram interest to cash. How will you split this entry? Ram interest to cash, tell me. अलग कैसे Ram करोगे? to cash and interest to cash. How much will be Ram to cash? Ram to 1,000. cash 1,000. 1,000. And how much will be interest to cash? 30. 30. इंटरेस्ट टू कैश तो आएगा नहीं यहाँ पे, बचा राम टू कैश. तो राम में क्या लिखना है? टू कैश 1,000. राम में लिखना है टू कैश 1,000. इज दिस क्लियर रोहित? सॉर्टेड. सो राम में आएगा टू कैश 1,000. इंटरेस्ट टू कैश तो आएगा ही नहीं, तो राम में आएगा खाली टू कैश 1,000. ओके, बाय इंटरेस्ट ये कुछ दिखेगा ही नहीं. और उसके बाद है राम टू बिल्स पेबल 3. So Ram to BP3 account, that will be 1520. Date is 28/7/2010. वापस डिसऑनर हुआ तो बाय BP3 account 1520. Date is 110/10 and then Ram to cash and Ram to deficiency. तो Ram में to cash 400 and Ram में to deficiency account 1120. This will be on 110/10. Finally, this tallies on what amount? Check. 12,040. 12,070. 70. 40 की 7. एक मिनट, कंबाइन नहीं किया है. हाँ नहीं किया है तो 70. हाँ, कंबाइन नहीं किया है तो 70.
कंबाइन किया है, जो सेकंड और थर्ड एंट्री कंबाइन किया है उसका पोस्टिंग किया है तो 12,040 मिलेगा, 12,040 मिलेगा। अगर कंबाइन किया है तो 12,040 है, कंबाइन नहीं किया है तो 12,070 है। इज दिस क्लियर? आ रहा है ये? कंबाइन किया हुआ को मिल रहा है 12,040, कंबाइन किया है तो यू शुड गेट 12,040। इज दैट क्लियर? नहीं किया है तो 12,070। सॉर्टेड? करो 12,070 and 12,040. Once you have done this, do sum number 11, last sum of ledger, sum number 11. दो बचते हैं, आई थिंक 8 और 6 बचते हैं, वो घर पे ट्राई कर लेना। 8 और 6 घर पे करना है, प्रैक्टिस। सम नंबर 11 लास्ट सम करो एंड देन वी मूव टू मिक्स्ड एंट्रीज। 11th sum is the last sum, please do it. ये वाला क्लियर हुआ? राम अकाउंट, एनी डाउट्स? सबसे Sir, इम्पोर्टेंट 11, 16,500. Sir, the Okay. noting charges in this is on 28.7 10. ये 28.7 है क्या? ओके ये नोटिंग चार्जेस वाला पार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक ओवर हियर ओनली, नोटिंग चार्जेस लिखना भूल जाते हैं। ओके, एंट्रीज बीपी नोटिंग चार्जेस टू राम, so bp to ram and noting charges to ram, bp to ram and noting charges to ram। तो राम में बाय बीपी एंड बाय नोटिंग चार्जेस दोनों आएंगे, राम में बाय बीपी एंड बाय नोटिंग चार्जेस दोनों आएंगे, 2,520 रुपीज। स्टूडेंट फॉरगेट टू राइट दिस ओनली, नोटिंग चार्ज। वो क्या करते हैं, सीधा बाय बीपी में 2,520 लिख देते हैं कंबाइन, वो सिली मिस्टेक कर देते हैं, टैली हो जाता है लेकिन मार्क जाता है फिर भी। तो आराम से कभी भी कंबाइंड एंट्री मिलेगा ना, इंडिविजुअल एंट्री में तोड़ देने का और फिर पोस्ट करने का, स्प्लिट अप तो इनटू 11 इंडिविजुअल। सम में परचेज का डेट नहीं है ना? 11th सम में परचेज का डेट नहीं है, डैश, परचेज के डेट में डैश आएगा 11th सम में, करेक्ट। So I'm getting tally amount 16,500. For 11th sum, is it for 11th you are Yeah, saying? 11. Yes. Yes. 1 minute, 16,500, is that right? 16,500 for 11th? Yes, sir. Tallying amount is 16,500, please check 11th sum. 16,500 is the tallying amount, check, check, check. Getting it? 16,500, 11th sum tallying amount. Still doing it. Okay. 6th और 8th दो प्रॉब्लम्स बाकी हैं, 6th और 8th वो ट्राई करना खुद से, 6th and 8th।
तो सब लेजर कंप्लीट चाहिए, 15 ledgers in the books of drawer and 15 ledgers in the books of drawee. All ledgers should be completed. 15 journal, 15 ledger, total 30 journal, 30 ledger accounts. Within 2-3 days, I'll be asking your books for correction once we complete the chapter. Today is, I think, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yeah, I think by Saturday we should wind up. So Sunday is your submission date. Okay, Sunday I'll give you the time slot. Sunday को submit करना है आपको books at the class, Global Tutorial Satyam. Okay. Sunday, all of you have to submit the books on Sunday. सर तभी दे दोगे कि बाद में वापस आना पड़ेगा लेने? बाद में वापस आना पड़ेगा 1-2 days के बाद. I'll let you know. तभी तक छुट्टी रहेगा क्लास में? नहीं भाई, दूसरा बुक है ना, दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स. Every chapter different book. Next week you will have a test on bills of exchange. Let you know the date. सर एक बार अमाउंट बोलोगे 16 सम का दोनों साइड का? 16,500 लिखा तो है सामने इसके. अरे दोनों साइड अच्छा, इंडिविजुअल credit. पोस्टिंग. पहला आएगा क्रेडिट साइड पे बाय परचेज 7,000. फिर डेबिट साइड पे 2 बिल्स पेबल 1 2,500, 2 बिल्स पेबल 2 4,500. फिर क्रेडिट साइड Yes. पे बाय बिल्स पेबल 1 4,500, बाय नोटिंग चार्जेस 50. Yes. उधर ही क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट 200. डेबिट Yes. साइड पे फिर आएगा 2 बिल्स पेबल 3 4750. Yes. वापस क्रेडिट साइड पे बाय बिल्स पेबल 3 4750. और Yes. लास्ट में डेबिट साइड पे 2 बैंक 4750. ओके. क्लियर? सॉर्टेड, लेजर क्लियर है? ऑल ऑफ यू मिल रहा है 16,500 11th सम, 6th and 8th सम. 2 सम प्रैक्टिस के लिए करना है, खुद से टैली करना है. अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कॉल और व्हाट्सएप मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके. So now we move to something that is called as mixed entries. Mixed entries क्या होता है? Let's understand that. Okay. Let's move to the next part that is called as mixed entries. अब सुनो ध्यान से. What are mixed entries? Practical business में you tell me, practical business में क्या हम हमेशा ड्रॉवर होंगे या हमेशा ड्रॉई होंगे या दोनों होंगे? Both. You can be both, right? In a practical business, sometimes you would be drawers and sometimes you would be drawees. Sometimes we will draw bills on other debtors. Sometimes our creditor will draw the bill on us. Yes or no? So दोनों situations possible है in practical business. Sometimes you are drawers, sometimes you are drawees, sometimes you are acceptors, right? So that's what is mixed entry all about. मिक्स्ड एंट्रीज के प्रॉब्लम में आपको खाली बीआर के एंट्रीज नहीं होंगे या खाली बीपी के एंट्रीज नहीं होंगे, दोनों के एंट्रीज मिक्स्ड आएंगे. ओके. नाउ देयर आर 2 important थिंग्स अबाउट मिक्स्ड एंट्री का प्रॉब्लम. 2 important points you need to remember. Point number 1, identify. Point number 1, identify. What to identify? Whether it is बीआर का एंट्री या बीपी का एंट्री. आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने बीआर के जगह बीपी कर दिया या बीपी के जगह बीआर कर दिया, सब रॉन्ग.
पूरे एंट्री सही होंगे लेकिन सब रॉन्ग, क्योंकि आपने बीआर के जगह बीपी की एंट्री कर दी। और बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज नॉट डिफिकल्ट, बट ध्यान नहीं देते, तो केयरलेसनेस में अननेसेसरली दे लूज मार्क्स। बीआर का बीपी कर दिया, बीपी का बीआर कर दिया, 0 मिलेगा। ओके, सो बीआर है या बीपी है, आइडेंटिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, केस। नाउ इन मिक्स्ड एंट्रीज they will not ask you full fledged sum, पॉसिबल ही नहीं है। अभी कैसा बीआर का एक फुल फ्लेजेड सम आप करते हो ना, पूरी स्टोरी होती है, पहले सेल्स होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर डीलिंग होता है, फिर ऑनर या डिसऑनर होता है, या रिन्यूअल होता है, ऐसे एक स्टोरी चलती है, बराबर है ना। बीआर की भी पूरी स्टोरी चलती थी, बीपी की भी पूरी स्टोरी चलती थी, राइट। बट मिक्स्ड एंट्रीज में ऐसी पूरा फुल फ्लेजेड सम का एंट्रीज नहीं पूछेंगे आपको, कभी भी नहीं पूछेंगे। मिक्स्ड एंट्री में they will ask you entries only of a particular case, so either 1 entry 2 entry या रिन्यूअल के 4 एंट्री। तो एक पर्टिकुलर केस का एंट्री पूछेंगे। अभी हाउ मेनी केस वी हैव इन ऑल 9 केसेस। if you remember properly, we have 9 cases. What are those 9 cases? Can you note down those 9 cases? Case number 1 was sales entry या purchase. Case number 2 was Acceptance. Case 3 is dealing entry. 4th is honor. 5th is dishonor. 6th is dishonor with noting charges. 7th one is retirement. 8th one is renewal. 9th one is insolvency. So mixed entries में आपको पूरा full fledged sum का एंट्री पूछेंगे भी नहीं और करना भी नहीं है, आपको सिर्फ उस केस का एंट्री करना। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस इज इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस इज इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ के पता चलना चाहिए कि भाई ये कौन सा केस पूछ रहे हैं, ऑनर एंट्री पूछ रहे हैं, या डिसऑनर एंट्री पूछ रहे हैं, या डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस पूछ रहे हैं, या रिन्यूअल का 4 एंट्रीज पूछ रहे हैं, या रिटायरमेंट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई वेदर बीआर करना है कि बीपी करना है। सेकेंड स्टेप, एक बार वो पता चल गया बीआर करना है कि बीपी करना है, सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द केस। कौन सा केस का एंट्री करना है, ऑनर, डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, रिटायरमेंट, रिन्यूअल, व्हाट केस। वो आपको क्लियर कट ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल जाएगा, सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आपको पूछा है खाली डिसऑनर का एंट्री, बट स्टूडेंट क्या करेगा, स्टार्टिंग से सेल्स एंट्री मारेगा, फिर एक्सेप्टेंस एंट्री मारेगा, फिर डीलिंग एंट्री मारेगा, फिर डिसऑनर एंट्री मारेगा, लंबा लंबा कहानी बता देगा। अरे भैया ऊपर का एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसका कोई मार्क्स नहीं है। सर किया तो रॉन्ग देंगे क्या? अरे भाई करो ना, वो एक आधे पौने घंटे तक आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही सम करते रहोगे, फिर इतना सारा एक्स्ट्रा एंट्रीज हो जाएगा पीछे। तो बोलने का मतलब पिछला राम कहानी का एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जिस केस का पूछा है वही करो, एक्स्ट्रा करने का कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। जो ट्रांजैक्शन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, वही एंट्री करनी है आपको। इज दिस क्लियर? 2 पॉइंट्स बैठे दिमाग में। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर बीआर करना है कि बीपी करना है। आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 16, past journal entries in the books of Amar. Last time telling you off videos will be out. Sum number 16, नया टॉपिक कर रहा हूं, वीडियोस ऑन चाहिए मेरे को, थोड़ा भी वीडियो ऑफ रहेगा बाहर जाओगे, डोंट टेल मी दैट। सम नंबर 16, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 16 in the journal entries in the past journal entries in the books of Amar. Yes, Vidushi? So this is like the journal that we used to do in last year, but in a more detailed and a specific form. That journal was very general. It had all the transaction, na? Purchase of asset, sale of asset, purchase of goods, sale of goods. That was a general transaction का journal. ये जो journal कर रहे हैं, ये this is specific only to bill of exchange entries, only to bill of exchange. Extra कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज का ही करना है। सो इन द जर्नल एंट्रीज ऑफ अमर, वी आर हु, वी आर अमर। इज दिस पार्ट क्लियर? हम लोग अमर हैं, ये बात क्लियर है सबको? अब ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले बीआर करना है कि बीपी करना है। देखो
कैसे मालूम पड़ेगा बी आर करना है कि बीपी? हमेशा याद रखना, अ बिल इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स एक्सेप्टर। बिल के साथ जिस बंदे का नाम चिपका हुआ है वो एक्सेप्टर है। अगर मैं आपको बोलूं अजय इज बिल, तो अजय इज द एक्सेप्टर। विजय इज बिल, तो विजय इज द एक्सेप्टर। राम्स बिल, तो राम इज द एक्सेप्टर। A bill of exchange is always known by the name of its acceptor। क्योंकि ड्रॉवर तो एंडोर्स करते रहेगा, चेंज होते रहेंगे, ड्रॉवर्स endorsees will change। Ultimately who has to pay the money? Who has to honor the bill ultimately? The acceptor। So a bill is always known by the name of its acceptor, keep that in mind। So if I tell you Ajay's bill, who is the acceptor? Ajay। Vijay's bill, who is the acceptor? Vijay। Ram's bill, who is the acceptor? Ram। Rahul's bill या Rahul's acceptance भी बोला जाता है, Rahul's acceptance या Rahul's bill, तो Rahul is the acceptor। Sanjay's bill या Sanjay's acceptance, Sanjay is the acceptor। Are you getting this? Arun's acceptance, so Arun is the acceptor। Are you understanding? So read the, अच्छा our bill दिया, our bill तो मतलब who is the acceptor? We are the acceptor। Our acceptance, तो we are the acceptor। Okay, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, अमर's acceptance, हम कौन है? अमर। एंड अमर's acceptance दिया है, मतलब अमर इज द एक्सेप्टर, मतलब हम एक्सेप्टर हैं। तो बी आर करना है कि बीपी? बीपी करना है। बीपी करना है, बिल्स पेबल की एंट्री करनी है। ये फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। फिट हुआ सबके? अमर's एक्सेप्टेंस मतलब अमर इज द एक्सेप्टर, हम अमर हैं, हम एक्सेप्टर हैं। एक्सेप्टर मतलब हम ड्रॉई हैं, मतलब हमें बीपी की एंट्रीज करनी है, बी आर की नहीं करनी है, बीपी की करनी है, हम ड्रॉई हैं। बात समझ आई? सेकेंड पॉइंट, विजय's एक्सेप्टेंस। विजय's बिल बोलो या विजय's एक्सेप्टेंस बोलो, मतलब हु इज द एक्सेप्टर ओवर हियर? विजय इज द एक्सेप्टर। विजय इज द एक्सेप्टर। हम कौन है? क्या हम विजय हैं कि हम अमर हैं? हम अमर हैं। विजय। तो अरे विजय व्हाट हैपेंड? एक मिनट, वी आर राइटिंग इन हुज बुक्स? वी आर राइटिंग इन हुज बुक्स? अमर। तो हु आर वी? अमर। ओके, और सेकंड पॉइंट पढ़ो, विजय's acceptance of 4000। कैन यू सी दैट? तो हु इज विजय? एक्सेप्टेंस मतलब हु इज विजय? विजय इज द एक्सेप्टर। अभी अभी बोला ना, बिल के साथ किसका नाम होता है? एक्सेप्टर का। तो विजय इज द एक्सेप्टर, वी आर अमर, वी आर अमर, विजय इज द एक्सेप्टर। तो हम कौन हुए? ड्रॉवर। तो बी आर का एंट्री करना है कि बीपी का एंट्री करना है? बी आर का एंट्री करना है। समझ आई? अगर हम एक्सेप्टर हैं तो बीपी का एंट्री करेंगे, अगर हम एक्सेप्टर नहीं है, कोई और एक्सेप्टर है, कोई और एक्सेप्टर है, तो हम ड्रॉवर बन गए ना, तो बी आर का एंट्री करेंगे। सिंपल। डिड यू गेट दिस? थर्ड वाला पढ़ो, थर्ड वाला, अवर एक्सेप्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय अवर एक्सेप्टेंस? अवर एक्सेप्टेंस मतलब हु इज द एक्सेप्टर? वी आर द एक्सेप्टर। वी आर द एक्सेप्टर। सो किसकी एंट्री करनी है, बी आर की कि बीपी की? बिल्स पेबल। हम एक्सेप्टर हैं तो बिल्स पेबल की करेंगे ऑब्वियसली। हम ड्रॉवर है तो बी आर की करेंगे। यहाँ पे हम एक्सेप्टर है, अवर एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। फोर्थ वाला पढ़ो, वसंत इन्फॉर्म दैट सचिन्स बिल, सचिन्स बिल, सचिन्स बिल, सचिन्स एग्जाम मतलब हु इज द एक्सेप्टर? सचिन। सचिन इज द एक्सेप्टर। सचिन इज द एक्सेप्टर। जस्ट दिस, पूरा प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट आइडेंटिफाई, बी आर करना है कि बीपी? सचिन्स बिल मतलब हु इज सचिन? एक्सेप्टर। हम तो अमर हैं, तो हम कौन हुए? ड्रॉवर हुए। तो बी आर करना है कि बीपी? बी आर करना है, बी आर करना है। ड्रॉवर है तो बी आर करना है। नेक्स्ट वन, अवर बिल। अवर बिल फिफ्थ वाले में दिया अवर बिल। अवर बिल मतलब हु इज द एक्सेप्टर? वी आर द एक्सेप्टर। वी आर द एक्सेप्टर।
अवर बिल अवर एक्सेप्टर मतलब वी आर द एक्सेप्टर, हम ही एक्सेप्टर है तो बी आर की एंट्री करेंगे कि बीपी की करेंगे? बीपी बीपी की करेंगे, बीपी की एंट्री करनी है। क्लियर हो रहा है सबको? देखो नेक्स्ट वन देखो, राहुल्स एक्सेप्टेंस, राहुल्स एक्सेप्टेंस, तो राहुल कौन है? एक्सेप्टर, तो हम कौन हुए? ड्रॉअर, ड्रॉवर। अगर हम ड्रॉवर हैं, राहुल एक्सेप्टर है, हम ड्रॉवर हैं, तो हमारे बुक में किसका एंट्री आना चाहिए? बी आर का कि बीपी का? बी आर, बी आर का। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए बी आर का करना है। फिर राजूज बिल, नेक्स्ट वाला है राजूज बिल, तो हु इज द एक्सेप्टर? राजू, राजू इज द एक्सेप्टर, बिल के साथ जिसका नाम दिया वो एक्सेप्टर है, राजू इज द एक्सेप्टर। तो हम कौन हुए? ड्रॉअर, ड्रॉवर हुए। तो बी आर करना है कि बीपी? बी आर, बी आर। सबको समझ आ रहा है? बात घुस रही है दिमाग में? हेलो? देन लास्ट वन, मोहन्स बिल, मोहन का बिल है, तो मोहन कौन हुआ? एक्सेप्टर हुआ। तो हम कौन हुए? ड्रॉअर, ड्रॉवर हुए। तो बी आर करना है कि बीपी? बी आर करना है। एनी कंफ्यूजन? बी आर करना है कि बीपी करना है? मेरे को फटाफट बताओ। फर्स्ट वाला अमर्स एक्सेप्टेंस, हम ही अमर है, हमारा एक्सेप्टेंस मतलब बीपी करना है। सेकेंड वाला विजय एक्सेप्टेंस, बी आर, बी आर करना है, विजय इज द एक्सेप्टर, वी आर द ड्रॉवर। थर्ड वन अवर एक्सेप्टेंस, बीपी, बीपी करना है। फोर्थ वन वसंत इन्फॉर्म दैट सचिन, बी आर, सचिन बिल, सचिन इज द एक्सेप्टर, वी आर द ड्रॉवर, तो बी आर करना है। अवर बिल फिफ्थ वन, बीपी, बीपी करना है। सिक्स्थ वन राहुल बी एक्सेप्टेंस, आर, राहुल इज द एक्सेप्टर ना, हम तो ड्रॉवर है तो बी आर करना है। राजूज बिल, बी आर, राजू इज द एक्सेप्टर, वी आर द ड्रॉवर, बी आर करना है। मोहन्स बिल, बी आर, मोहन इज द एक्सेप्टर, वी आर द ड्रॉवर, बी आर करना है। एनी कंफ्यूजन इन दैट? पक्का समझा? मेरे को नेक्स्ट सम का बताओ। वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अजय, अजय इज एक्सेप्टेंस, बीपी, बी इन्फॉर्म्ड अस दैट ए इज एक्सेप्टेंस, ए इज द बी आर, बी आर करना है। थर्ड वन विजय इज बिल, बी आर, विजय इज द एक्सेप्टर ना, वी आर द ड्रॉवर, तो बी आर करना है। फोर्थ वन अवर बिल, बीपी, बीपी करना है। फिफ्थ वन राजीव्स बिल, बी आर, BR करना है। All of you are getting this knack of identification. Who is a drawer, who is a drawee, BR करना है कि BP करना है, ये क्लियर हो रहा है सबको? बोलो एनी कंफ्यूजन? सॉर्टेड है सबका? फिर आ जाओ सम नंबर 19 पे। 19 पे आइडेंटिफाई करो इन द इसका बुक्स ऑफ, ट्रांजैक्शन उतना ही पार्ट के लिए एक दो एंट्रीज जितना ही आएगा ना, तो यस यस, एक दो एंट्रीज इतना ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा 4, रिन्यूअल का 4। 19 सम पढ़ो इन द बुक्स ऑफ राजा। ओके, वी आर राजा, राजाज एक्सेप्टेंस, बीआर करना है कि बीपी? बीपी। ऑल ऑफ यू आंसर अवर एक्सेप्टेंस, बीपी, अवर एक्सेप्टेंस क्या करना है? बीपी करना है। अ बिल ऑफ 4000 ड्रॉन ऑन अजय, ड्रॉन ऑन अजय मतलब हमने ड्रॉ किया अजय पे, तो बीआर करना है। ये तो सिंपल इंग्लिश है। अवर एक्सेप्टेंस, बीपी, वाले में अवर एक्सेप्टेंस है, बीपी करना है। और सिक्स्थ वाले में अवर ओन एक्सेप्टेंस, अवर ओन एक्सेप्टेंस, बीपी करना है। तो कंफर्टेबल, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, आइडेंटिफिकेशन। बीआर करना है कि बीपी? सब लोग को क्लियर हुआ? स्टिल एनी कंफ्यूजन? प्लीज आस्क मी। बोलो। अब सेकेंड स्टेप के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केस की एंट्री करनी है, और उसके हिसाब से वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। तो ऑल ऑफ यू ड्रॉ द जर्नल, वो आपको मैं सम्स के साथ बताता हूँ। जर्नल ड्रॉ कर लीजिए सब लोग। बड़ा जर्नल होगा, 3-4 पेज पे जाएगा, एकदम ध्यान से देखना है सबको। 3-4 पेजेस द जर्नल एंट्रीज विल गो। ऊपर हेडिंग देना इन द जर्नल ऑफ अमर, इन द जर्नल ऑफ अमर, हम लोग अमर हैं, इन द जर्नल ऑफ अमर। इसमें अपने को ढूंढना नहीं है किसके बुक में लिखना है, इसमें दिया होगा। और डेट्स नहीं हो गए, हो सकते हैं डेट भी हो सकते हैं ऐसे एंट्रीज में, जनरली डेट्स नहीं होते हैं, नंबर दिया होता है। तो नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, ठीक है। तो सीरियल नंबर होगा जनरली ये टाइप के सम्स में। डेट है तो डेट लिखना, अदरवाइज सीरियल नंबर। ड्रॉ कर लो सब लोग। और अभी आइडेंटिफाई
BR BP का तो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, केस आइडेंटिफाई करना और वही केस का एंट्री पास करना है आपको. ओके, रीड, ऑल ऑफ यू रीड द फर्स्ट पॉइंट. अमर्स एक्सेप्टेंस, ये देख के पता चल गया होगा कि बीपी करना है, बराबर है. अभी अमर्स एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 was renewed by receiving half in cash and accepting a new bill for the balance and interest at 9% for 3 months. Can you identify the case? Which case entries they are asking us to pass? Renewal. How many entries do we have in renewal case? 4 4 entries. बस वही 4 एंट्री करना है. सर पिछला सेल्स परचेज एंट्री, एक्सेप्टेंस एंट्री, डीलिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना. कौन सा एंट्रीज करना है, कौन सा केस का बात चालू है? रेन्यूअल. अभी क्या हो रहा है? रेन्यूअल हो रहा है. तो हाउ मेनी एंट्रीज ऑफ रेन्यूअल? 4 एंट्रीज. तो नंबर 1 का है 4 एंट्रीज. आई विल नेम इट ABCD. मेरे को बताओ वीर शाह, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री ऑफ रेन्यूअल? Bills payable to draw. वेरी गुड. तो बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ, राइट? तो हु इज द ड्रॉवर? इज देयर एनी नेम गिवन टू यू ड्रॉवर का? So we simply write drawer. वेरी गुड. तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, नाम दिया है तो नाम लिखो, नहीं दिया है तो ड्रॉवर लिख दो, ड्रॉवर या ड्रॉई. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट 4000. मैं क्या कर रहा हूं? रिन्यूअल का ही एंट्रीज पास कर रहा हूं. सर क्यों खाली रिन्यूअल? अरे पढ़ो उधर, दिया है. अभी क्या हो रहा है? बिल रिन्यू हो रहा है, तो खाली रिन्यूअल करना है. बीइंग BP डिसऑनर्ड या कैंसल्ड. ओके, व्हाट इज द सेकंड Sir, स्टेप can we ऑफ? skip the narration? खाली 1-2 में लिखो, फिर स्किप करेंगे. मिक्स्ड एंट्रीज में स्किप कर देंगे, डोंट वरी. मुझे बताओ विदुषी, सेकंड स्टेप ऑफ रिन्यूअल क्या होता है? Paying half the amount, part payment. आधा अमाउंट दे रहे हो, राइट? एंट्री क्या बनेगी? Cash, draw to Correct. cash. ड्रॉवर टू कैश. बीपी कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू फोकस. बीआर कर रहे हो कि बीपी? बीपी का रिन्यूअल में पार्ट पेमेंट, ड्रॉवर टू कैश. नाम दिया होता तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉवर टू कैश. हाउ मच आर वी पेइंग इन कैश विदुषी? 2000. 2000, only 2000. Interest we are not paying, interest is coming with new bill. So this is being part payment made, being part payment made. What is the third step? Forum Malavia, what is my third step? Interest to drawer. Interest to drawer. Very good. तो लिख दो interest to drawer. Interest account debit to drawer account. Interest to drawer. Let's calculate the interest. 45. What amount you will calculate interest on? 2000 balance amount at the rate of what? 9% 9%. for how many months? 3 months. 12. How much that comes to 3 months? 45. 45 आ रहा है. Please calculate. I don't know. Check properly. 45 आना चाहिए. This is being interest payable. नाम नहीं दिया है ना ड्रॉवर का, तो मैं इंटरेस्ट टू ड्रॉवर ही मारूंगा. Okay, being interest payable. Maya, what is the fourth step of renewal? New bill accepted. What is the entry for new bill accepted? Draw to BP. Drawer to BP. तो लिख दो सब लोग, drawer account debit to bills payable account. Drawer account debit to bills payable account. What should be the amount of this bill, Maya? 2044. Very good. Interest भी new bill के साथ आ रहा है, कैश में नहीं है. So 2045 being BP accepted with interest. Being BP accepted with interest. पहला वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे खत्म हुआ. 4 एंट्रीज किया, खत्म हो गया. क्यों 4 किया? क्योंकि रिन्यूअल पूछा था. All of you understood this? First one is clear. Identification and case. दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन एंड केस. बस वो दोनों आइडेंटिफाई हो गए, फिर तो धड़ाधड़ एंट्री पास करते जाओ. सॉर्टेड है. फर्स्ट वाला समझा सबको? सेकेंड वन देख के बताओ. विजय's एक्सेप्टेंस. तो बीआर करना है कि बीपी करना है? बीआर करना है. बीआर करना है. सबको फिट हो रहना चाहिए दिमाग में, बीआर करना है.
अभी बी आर करना है, ठीक है। क्या कौन से केस की एंट्री करनी है, रीड करो। Vijay's acceptance of 4,000 endorsed to Sanjay was renewed by receiving 1,500 in cash along with interest at 12% per annum for 2 months and a new bill for the Nishisha. Which case ka entry are we supposed to do over here? So renewal. All of you agree on that renewal? How many entries we have in renewal? 4. 4 entries. So Nishi, guide me. First entry क्या होगा renewal का? Dishonor entry. Dishonor entry होगा with noting charges या without noting charges? Without. Without. And which dishonor entry we are supposed to pass? All of you focus. Endorsement. Endorsed bill dishonored, क्योंकि उधर दिया हुआ है कि बिल क्या हुआ था, सॉरी एंडोर्स हुआ था। दिख रहा है आपको? कैन यू ऑल सी दैट? विजय's acceptance endorsed to संजय, संजय को हमने एंडोर्स किया हुआ था। Endorsed bill is getting dishonored. What is the entry, Nishi? Endorsed bill getting dishonored. Acceptor to endorsee. So यहाँ पे क्या आएगा? Vijay to Sanjay. विजय टू संजय, विजय टू संजय। समझ में आ रहा है आपको? सर पिछला एंट्री, सेल्स एंट्री, एक्सेप्टेंस, डीलिंग, वो सब नहीं करना है सर। किया तो एक्स्ट्रा है, कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स अभी खाली रिन्यूअल का मिलेगा, रिन्यूअल का ही 4 करना है। तो विजय टू संजय कितना आएगा? विजय टू संजय 4,000. 4,000 बिल अमाउंट, परफेक्ट। विजय टू संजय So 4,000। the dealing entry of endorsement won't come. नहीं, डीलिंग एंट्री हो चुका है 2 महीने पहले। आज क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। तो आज के दिन के 4 एंट्रीज करने हैं अपने को। डीलिंग एंट्री भी नहीं करना है, 2 महीने पहले हुआ है। सेल्स एंट्री 2 महीने पहले हुआ है। एक्सेप्टेंस एंट्री 2 महीने पहले हुआ है, वो सब नहीं करना है। आज अभी क्या हो रहा है? क्वेश्चन में क्या दिया? रिन्यूअल, तो रिन्यूअल का करो। गॉट इट? सर इसमें इंटरेस्ट वाला स्वैप होगा ना? हाँ यस, ये नरेशन लिख दो। बीइंग बीआर डिसऑनर्ड। अभी व्हाट विल बी माय सेकंड स्टेप? शुड आई राइट पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट फर्स्ट, क्यों स्वैप कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि साथ में आ रहा है ना। क्योंकि इंटरेस्ट इज पेड अलोंग विद पार्ट पेमेंट। कैन यू ऑल सी दैट? सो कैन यू टेल मी द एंट्री स्मिथ शाह फॉर इंटरेस्ट? स्मिथ शाह, सॉरी, इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा ड्रॉवर के बुक में? संजय टू इंटरेस्ट की विजय टू इंटरेस्ट? हु इज द एक्सेप्टर? विजय इज द एक्सेप्टर। संजय तो एंडोर्स ही था। विजय टू इंटरेस्ट, विजय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Acceptor to interest, Vijay to interest. Let's calculate the interest. Interest किस अमाउंट पे करना है? पढ़ो। कितना दे रहे हो कैश में आप? 1500। तो पेंडिंग कितना रख रहे हो? 2500। तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? 1500, 4000, 2500, how much? 500. All of you got this? बिल के 4000 में से 1500 तो दे रहे हो ना आप इमीडिएटली, तो 2500 आपने पेंडिंग रखा है। तो 2500 पे व्हाट इज द रेट? 12% for 2 months. Extended period is 2 months. So how much do you get? 50 rupees. So Vijay to interest would be 50 rupees. This is interest receivable. Being interest receivable. Is this clear? Acceptor to interest. क्यों 2500 पे किया? क्योंकि 1500 ताबड़तोब हमें रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। भव्यानंदू, व्हाट इज द थर्ड स्टेप नाउ? सेकंड विल बिकम थर्ड, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट दिखाना है। क्या होगी? विजय टू पार्ट पेमेंट। हाँ, हम लोग ड्रॉवर हैं। ओह सॉरी सर। पैसा आ रहा है। हाँ, पार्ट पेमेंट टू। पार्ट पेमेंट नहीं, क्या आ रहा है? कैश। पार्ट पेमेंट तो नाम है, कैश आएगा। कैश टू व्हाट?
Cash to Acceptor. Vijay. Cash to Vijay. Cash to acceptor. How much cash we will receive? 4050, right? No, not एक 4050. नहीं Part नहीं payment एक कितना आ रहा है? हाफ कितना पे किया इसने? पढ़ो 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 पढ़ो. 1500 plus 40. Plus 50. 1005 नहीं 50 50 50 is interest. 50 रुपया मिला ना इंटरेस्ट का, वो 50 रुपया प्लस 1500 रुपया बिल का, दोनों आ रहा है कैश में, तो 1550. इज दिस क्लियर? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट. ये वाला अमाउंट में किसी को कंफ्यूजन? बोलो 50 क्यों आया, समझा? Sir, can you show the combined entry? कंबाइंड एंट्री बताता हूँ, पहले इंडिविजुअल समझा. विजय टू इंटरेस्ट 50 रुपीज और वही इंटरेस्ट आपको कैश में मिल रहा है, तो 1500 बिल का प्लस 50 रुपया इंटरेस्ट का 1550 यू आर गेटिंग इमीडिएटली इन कैश. What will be the amount of new bill in this situation? 2500. 1500. Okay, I'll come to the combined entry also. Tell me the fourth step, Manan Patel. New bill accepted. What is the acceptance entry? BR to Vijay. Yes, bills receivable account debit to Vijay account. Bills receivable account debit to Vijay account. How much? 2500. This is being BR accepted. Being BR accepted. This was one presentation. जब इंटरेस्ट कैश में आता है तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन ये है. What is the second presentation? We combine them. Combine. Step 2 and step 3. तो combine करो. विजय टू इंटरेस्ट, कैश टू विजय. Combine करोगे तो क्या मिलेगा? Cash to interest to Vijay. Cash to interest to Vijay. This will be our combined entry. कैश में कितना आएगा? 1550. इंटरेस्ट में 50, विजय में 1500. Is this clear? Cash to interest, cash to Vijay, that's your combined entry. Cash to interest to Vijay. 2 और 3 को क्लब करो तो विजय विजय में कट हो जाएगा 50 रुपये. कैश टू इंटरेस्ट टू विजय. क्लियर प्रियल? अभी समझा क्या करना है सब में? पहले आइडेंटिफाई करना है बीआरए की बीपी, और फिर केस आइडेंटिफाई करना है, कौन से केस का एंट्रीज पूछा, और वही केस की एंट्रीज करनी है. अभी नरेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है? या स्किपिंग द नरेशंस. शॉर्ट में लिखना है तो लिख देना 2 वर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लिखा है, दो वर्ड में शॉर्ट नरेशंस लिख देना. पूरा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है. थर्ड वाला बीआरए की बीपी है. अवर एक्सेप्टेंस दी. BP. सब लोग बोलो, सोच के बोलो. बीआरए की बीपी है. BP. बीपी करना है. ये बात क्लियर हुआ सबको? अब पढ़ो कौन सा केस का एंट्री करना है. Our acceptance of 2000 discounted with bank was renewed for 2050. Renewal. Only renewal. Including interest. Only renewal. Only renewal. Renewal of a BP. Mega Goel, what is the first step of renewal? Bills payable to drawer, dishonor. Very good. Is there any drawer का नाम? No, so we write drawer. Drawer. So BP to drawer. बैंक को डिस्काउंट करवाया हुआ बिल है, कोई फर्क पड़ता है अपने को? No, because that is coming in the drawers book. ड्रॉवर का बुक में है. ओके, हमारे लिए तो डिसऑनर की एक ही एंट्री है, बीपी टू ड्रॉवर या बीपी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर. अच्छा, बीपी टू ड्रॉवर कितने का बिल था? 2000. 2000. शॉर्ट में लिखना है तो लिख दो बीपी डिसऑनर्ड. बीपी डिसऑनर्ड. व्हाट इज द सेकंड स्टेप गर्गी? So cash part payment is received. इज देयर एनी पार्ट पेमेंट? No, so we'll go to interest. Interest. What is the entry for interest? It will be draw to no sorry, interest to drawer. Interest to drawer. Interest to drawer. Interest to drawer. कितना आएगा इंटरेस्ट टू ड्रॉवर? कैलकुलेट करना है. 50 rupees. How come 50 rupees? Did you understand? All of you? Yes, we are given that it was of 2000 and got accepted for 2050.
Okay, new bill is of 2050. Why 50 rupees extra? That is for interest. Interest. This is interest payable. This is interest payable. What is the third step? Priyansh Dedia. Last step of renewal. The acceptance of new bill. Entry. Draw to bills payable. Drawer account debit to bills payable account. Drawer account debit to bills payable account. What will be the amount of this new bill? 2050. 2050. 2000 plus 50. 2050. 2050. This is BP accepted with interest. BP accepted with interest. भेजे में जा रहा है सबके? Anyone confused? क्या हो रहा है? Not understood anything? Particular point? Rahul Thakkar. समझाय છે? मनन पटेल, हाँ, यश sir, वोरा, समझाय. देवांश दोषी, हाँ सर जैनम शाह, भव्या नंदू. बैठ रहा है दिमाग में एंट्रीज? That's why I told you, pro forma entry should be very very perfect. BR BP का एंट्री दोनों का एंट्री परफेक्टली आना चाहिए. मिक्स्ड एंट्री में एकदम रियल टेस्ट है मिक्स्ड एंट्रीज. फोर्थ वन, वसंत इन्फॉर्म दैट सचिन बिल. पहला तो सचिन बिल देख के पता चलना चाहिए BR करना है कि BR. Yeah. अब BR. वसंत informed that Sachin's bill of 3000 was dishonored. Noting charges were 20. We paid Vasant the balance amount. पहले तो बताओ BR करना है, बराबर है. कौन सा केस का एंट्री करना है? Endorsement. डिसऑनर्ड एंट्री Endorsement. इंक्लूडिंग वोटिंग चार्जेस Endorsement. हाँ, एंडोर्समेंट का डीलिंग एंट्री करना है कि Dishonor. डिसऑनर का एंट्री? डिसऑनर्ड Dishonor. इंक्लूडिंग वोटिंग चार्जेस डिसऑनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ये वाले एंट्री करनी है फिलहाल. इज दिस क्लियर? डिसऑनर इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस. एंडोर्स्ड बिल. हाउ कम यू नो इट इज एंडोर्स्ड बिल? Is given to Dishonor Sachin. हुआ है. वसंत इन्फॉर्म दैट सचिन बिल. वसंत अपने को क्यों इन्फॉर्म करेगा? Because he is द एंडोर्स, उसको भेजा रहेगा बिल, उसको पहला मालूम पड़ेगा ना बिल बाउंस हो गया है. समझ में आ रही है बात? जिया सावला BR. ओके, ड्रॉवर के बुक में endorsed BR dishonored with noting charges. What is the entry? Acceptor to endorse. Very good. Who is the acceptor over here? Basant, No. Sachin. दोनों तो बोल दिया. सचिन. Sachin's bill. अभी बोला. Bill is known by the name of its acceptor. What you are not paying attention? Sachin's bill. Acceptor. Who is Vasant? Endorse. Endorsee. So Sachin to Vasant. Are you getting this? Sachin to Vasant. What will be the amount with noting charges? 3020. 3000 plus 20 of noting charges. 3020. All of you got this? Dishonor with noting charges. Acceptor to endorsee inclusive of noting charges. This is BR dishonored with noting charges. एक और एंट्री करनी पड़ेगी अपने को. क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया. We paid Vasant the balance amount. What is this entry? We paid Vasant the balance amount. Account settled. Account settled. वो याद है? राहुल, चंदर, रहीम, those creditor का account, Kulin, we used to settle extra entry star mark वाला. Yeah. Sir, in a sum, if the last entry was this, that Vasant informed Sachin's bill of 3000 was dishonored, then the ledger would not tally, right? Yes, then the ledger would not tally. Correct. If the sum ends on dishonor, then the ledger would not tally. In this situation, yes, correct. One more extra entry now. One more extra entry. What is that extra entry? Come on. Vasant account set. Cash. Entry? Vasant to cash. Vasant to cash. Vasant to cash. This is that star mark वाला entry. हाँ, question में दिया तो करना. कितना देना है वसंत को? 3000 या 3020? 20. Noting charges. 3020. नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा. बराबर है? वसंत सेटल्ड. वसंत अकाउंट सेटल्ड. ये हुआ आपका फोर्थ वाला. समझा क्या किया फोर्थ वाले में? खाली डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस किया. पिछला राम कहानी मत लिखना. सेल्स एंट्री, डीले एक्सेप्टेंस एंट्री, डीलिंग एंट्री, वो लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. अवर बिल म्हणजे काय? अवर बिल म्हणजे काय?
Bills payable. बीपी करना है, सबको समझ आया बीपी करना है? ठीक है, पूजन बंसाली बताओ बीपी करना है. Our bill of 6,000 for 3 months was retired 2 months before the due date under a rebate of 10%. बीपी का कौन सा केस का एंट्री करना है? Retirement entry. रिटायरमेंट एंट्री. व्हाट इज द बीपी रिटायरमेंट की एंट्री? Payable to cash to rebate. बस काम खत्म. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू rebate. Bills payable to cash to rebate. Can you guide me how should I calculate rebate on what amount? बिल है, क्या टका है, कितना टका है? 10% है. For how many months? $1 million question. How many months का 2 डिस्काउंट months rebate? before the due date. So 2 months before the due date. तो 2 महीने का डिस्काउंट. All of you got that? 100 रुपये आना चाहिए. I feel. Is that right? 100 rupees. Yes, sir. बोलो मेरे को अमाउंट्स क्या होंगे आपके? Bills payable to 6,000, 6,000, 5,900. 5,900. 5,900 and 100 rupees is rebate. Okay. BP retired. BP retired. एक ही एंट्री पूछा था, रिटायरमेंट का ही पूछा था, वो ही किया, खत्म, केस ओवर, फिनिश्ड, वन सिंगल एंट्री. ओके. 7th वन, राजूस बिल. यश वोरा, राजूस बिल देख के पता चल जाता है बीआर करना है कि बीपी. Sir, 6. 6th वाला, अच्छा हाँ सॉरी 6th वाला. यश वोरा, राहुल एक्सेप्टेंस देख के क्या पता चल रहा है? It is BR. BR. And Rahul's acceptance of 3 months was retired 1 month after the due date, after the date of acceptance, sorry, after the date of acceptance at a discount of 8%. किसका एंट्री करना है? Retirement entry. What is the retirement entry of BR? Cash account, rebate account, bills receivable account. Cash account debit, rebate account debit to bills receivable account. Cash rebate to bills receivable. Tell me how should I calculate the rebate? Amount is 3,000. Yes. Rate is 8%. Okay. And the duration will be 1 month. 2 months. 1 month, 2 months, 3 months. How many months? 1 month. Sir, 1 2 month, Was 1 month after the acceptance. 2 months. 2 months. 1 month, 2 months, 3 months. तीन ही ऑप्शन है. 2 months because it's 1 month 2 after due months. date, so 2 months will be left. 1 month after the date of acceptance दिया है, ऐसा नहीं दिया 1 month before the due date. ध्यान से पढ़ो. 3 महीने का बिल है, आज एक्सेप्ट हुआ, 1 महीने बाद रिटायर हुआ, 1 महीने बाद पैसा दे दिया, तो कितना जल्दी दिया? बिफोर द ड्यू डेट कितना दिया? 2 months. 2 months बिफोर. 2 months. 2 महीने का डिस्काउंट आएगा. ओके. 2 months का डिस्काउंट. 0 कट, 2 1 जा, 2 6 जा, 6 1 जा, 6 5 जा. I think 40 rupees is discount. Is that right? Yes. 40 rupees. Bill amount was 3,000. 40 is discount. हाथ में कितना आएगा? I think 2960. 2960. This is BR retired. BR retired. समझ में आ रही है? एंट्रीज, केसेस, आइडेंटिफिकेशन आ रहा है सबको? केसेस, रिटायरमेंट बोला है तो रिटायरमेंट, रिन्यूअल बोला है तो रिन्यूअल, डिसऑनर बोला है तो डिसऑनर. साइशा, टेल मी द 7th वन. Raju's bill sent to bank for collection. What can you tell me? BR करना है कि BP पहले तो? BR. BR. Because अभी Raju's bill sent to the bank for collection for 3,000 was collected and bank charged 20 rupees. So which case? 1 second. Bank for collection. का bill था हाँ. वो? Also dealing entry. Is it dealing? Sure. No wait. Bank. Oh sorry, honored. Honored. It got Honored. collected. When The does the bank for collection charge you the bank charges? When does it charge you the bank charges? Whenever the bill gets honored. So, डीलिंग के वक्त तो कोई चार्जेस होता ही नहीं है. इट गॉट कलेक्टेड, दिया हुआ है वहां पे. ऑल ऑफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस? कौन सा केस का एंट्री करना है, समझ में आ रहा है आपको? टेल मी साइशा, बीएफसी का बिल गेटिंग ऑनर्ड, व्हाट इज द एंट्री? so bank account, bank charges account, or to bank for collection account. यस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. खाली ऑनर एंट्री करनी है. कलेक्टेड मींस ऑनर्ड.
Tell me the amount, Saisha. So 3,000 Yes. and the bank charges are 20. So bill में बैंक में 2986. बराबर. This is BR honored. सबको आइडेंटिफिकेशन समझ रहा है केस का क्या हो रहा है यहाँ पे? BF confused here कि इधर डिवोन एंट्री भी पास होगा. हाँ देखो क्या दिया है. राजू's bill sent to bank for collection was collected. पहले ऑनर का एंट्री करना है, वो समझ में आया तुमको? ऑनर का तो करना ही है. हाँ, वो तो समझा. हाँ, बैंक चार्जेस अब डीलिंग करना है कि नहीं? डीलिंग करना है कि नहीं? तो डीलिंग एंट्री कब हुआ होगा? 2 महीने पहले हुआ होगा. आज ऑनर हुआ है बिल पीरियड खत्म होने के बाद, तो आज का डेट का एंट्री पूछा है. आज क्या हो रहा है? ऑनर. 2 महीने पहले की एंट्री अभी करने की जरूरत नहीं है. बात समझ आई? अब तुम अगर डीलिंग एंट्री सोचती हो करने का तो एक्सेप्टेंस भी करो ना, वो भी 2 महीने पहले हुआ है. अच्छा एक्सेप्टेंस सोच रहे हो तो सेल्स एंट्री भी करो, वो भी 2 महीने पहले हो रहा है. आर यू गेटिंग दिस? नहीं होगा. हाँ, तो वो सब नहीं होंगे, खाली ऑनर एंट्री होगा. अभी क्या हो रहा है? ऑनर. ऑलराइट. बीएफसी को भेजा हुआ बिल ऑनर हो रहा है. अपने को बीएफसी का केस देने के लिए वो रेफरेंस दिया हुआ है. आज क्या हो रहा है उसका एंट्री करना है. सॉर्टेड है? पलक सरदारा टेल मी 8th वाला मोहन्स बिल म्हणजे काय? बीआर की बीपी? Bills receivable. Receivable. अब पढ़ो. Mohan's bill of 1,000 sent to the bank for collection was dishonored as he became insolvent and only 25% recovered. Noting charges were 20. Which case का entry? Dishonor entry with noting charges. केस कौन सा है? खाली डिसऑनर करना है? नहीं, फाइनल सेटलमेंट. हाँ, सो इंसॉल्वेंसी वाला केस. इंसॉल्वेंसी केस में हाउ मेनी स्टेप्स? 2 steps. What is step number 1? Dishonor. With or without noting charges? With noting charges. With noting charge. Where was the bill? Bank for collection. बैंक. अभी ऑल ऑफ यू फोकस. हम लोग ड्रॉवर के बुक्स में है. बिल सेंट टू बीएफसी. बीएफसी का बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. व्हाट इज द एंट्री? One account debit to bank for collection to bank account. वेरी गुड. याद आ रहा है ये एक्सेप्टर टू बीएफसी टू बैंक? कभी तो किया था 100 साल पहले. एक्सेप्टर टू बीएफसी टू बैंक, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस. बीएफसी का बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. हेलो. So acceptor, that is Mohan, to BFC, that is bank for collection to bank. Mohan to BFC to bank. मुझे सोच के बताना पहले मोहन में क्या अमाउंट लिखोगे आप? 1020. Very good. Inclusive of noting charges. 1020. 1020. BFC में कितना? 1000 and bank में 20. This is BR dishonored. And the final settlement part, Kiran Shah, can you tell me the final settlement part का entry? First the bill is dishonored with तो हो गया. noting charges. Oh sorry. Final set. अभी Mohan's account to cash rebate, cash ऐसा आ रहा है. debts to Mohan. Cash bad debt to Mohan. Cash bad debt to Mohan. BP करूँ तो BR भूली गया છે બધા. Cash bad debt to Mohan. Cash bad debt to Mohan. How much? How much are we able to recover? 25%. 5%. So 1020 लेना था, उसका 25% कितना होता है? I think 255. And 765 would be your bad debts. This is 25% dues recovered. 25% dues recovered. That's your sum. इतना बड़ा सम नहीं आता है बोर्ड्स में. बोर्ड्स में 3 से 4 ऐसे इसके ट्रांजैक्शन. मैंने 8 का करवाया ना अभी आपको. लास्ट एंट्री देखा था. 3 से 4 आता है. लास्ट एंट्री इज कैश बैड डेट टू मोहन, कैश बैड डेट टू एक्सेप्टर, कैश बैड डेट टू मोहन, कैश बैड एक्सेप्टर. સર આ સમ કેટલા માર્ક્સ માટે પૂછ્યા? 10 marks, but એટલું મોટું ના આવે. 3 to 4 transactions. Total 5 to 6 entries you have. Entire sum 6-7 entries. That's it. Okay.
मिक्स्ड एंट्रीज का सम भी 10 मार्क के लिए आ सकता है, बोर्ड्स में आया हुआ है, मिक्स्ड एंट्रीज का सम पूछा हुआ है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। यस, इट हैज बीन आस्क्ड। सो अभी भी एंट्रीज बीपी किया है तो बीआर कच्चा है, भूल गए हो, रिवाइज करो तो मिक्स्ड एंट्रीज जमेगा, नहीं तो कल वापस क्वेश्चन मार्क। आंसू करे छे सर, याद ज न था। रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहने वाला है, लॉजिक से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। रट्टा मारा हुआ है इसलिए भूल रहे हो तुम घड़ी घड़ी। लॉजिकली याद रखो, पैसा आ रहा है जा रहा है, एक्सेप्टर डेबिट, एक्सेप्टर से लेना बढ़ रहा है कम हो रहा है, बीआर से लेना बढ़ रहा है कम हो रहा है, लॉजिक से फिट करो। तो आज यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। होमवर्क के लिए कुछ खास नहीं है, वो खाली बचे हुए लेजर अकाउंट्स आपको कंप्लीट करने हैं घर पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीआर बीपी दोनों की एंट्रीज रिवाइज करनी है, बीआर बीपी दोनों की रिवाइज करनी है। कल सम्स के साथ वापस बीच बीच में पूछूंगा, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ सीधा लिखने दे दूंगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक, थोड़ा भी मिस्टेक, एक वर्ड का भी मिस्टेक हुआ किधर, सीधा 10 टाइम्स आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड एंट्रीज के लिए एंट्रीज परफेक्टली होना जरूरी है। रिवाइजन कम टुमारो, ओके। मोर सम्स ऑफ मिक्स्ड एंट्रीज, टाटा बाय बाय, यू टेक केयर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank Thank